A very good morning to all of you. Welcome back to this third session of Tech Gyan, where we are learning about basic programming language, the basics of a language. And in the last two lectures, हमने ये सीखा एक लैंग्वेज क्या है, why we need it. फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में we covered that what exactly a programming language is, what is a program, how interpreter is working, how your binaries are converted to decimals and how your decimals are converted to binary, and how actually a machine is working. So just giving you a quick recap of the last lecture. In that we have done is what is programming. So basically programming is a language, it is a tool, it's a tool only that we use to communicate with the machine. Without a tool we cannot communicate with the machine, so it's a tool that we use to communicate with the machine. When we want machine to learn something, we use these tools, and for this we have to write programs. Programs are instructions. Whatever we want to do, we give instructions writing a program, and we write the programs in a programming language. And the people who write the program, they are called programmers. And when multiple programs they combine together, they form a software. And we are having n number of softwares. With the help of softwares, we are performing multiple tasks on our system. Everything that we do is with the help of a software only. So this is exactly we have done in our last lecture. Now another aspect of language, of learning, that we are going to cover today is learning a language, using a language. You kindly read these two lines once again. It's learning a language, using a language. And these two are entirely different things, my dear. और इस लेक्चर का मेन मोटिव यही चीज समझाना है कि लैंग्वेज लर्न करना क्या है और लैंग्वेज को यूज़ करना क्या है, और हम उसको यूज़ कैसे कब कर पाएंगे अगर हमने लर्न कर भी ली है तो. सो इसका अलग अलग इसके डायमेंशंस हैं. आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. लेट्स हैव एन इलस्ट्रेशन. स्क्रीन पे यू आर लुकिंग राइट नाउ. अगर मैं आपको बोलूं that count A to Z, it's an illustration and it is a very powerful illustration that will make you quite understand कि लैंग्वेज लर्न करना क्या होता है एंड जब उसको यूज करना पड़े तो क्या होता है. सो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को A to Z सुनाओ, so all of you will be taking not more than some 5-6 seconds और फिर 10-6 seconds, 10 सेकेंड में आप मेरे को A to Z सुना दोगे, राइट? अब आपने मेरे को A से लेके Z तक सुना दिया. इसका मतलब है कि आपको A to Z तक लिखना आता है. यू नो हाउ टू राइट. एंड मोर ओवर मैं ये भी मान के चलूँ कि आपको कॉमास, फुल स्टॉप्स सबके बारे में पता है कि क्या होते हैं. सो अब आपको A to Z आता है. ये एक बहुत ही मीनिंगफुल एग्जाम्पल है माय डियर. आपको A से लेके Z तक आता है. इसी तरह आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जो पंजाबी है, इंग्लिश है, उसके आपको अल्फ़ाबेट्स सारे आते हैं. आपको उसके रूल्स भी आते हैं. फुल स्टॉप पता है क्या है, कॉमा पता है क्या है. लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपको A to Z आता है, okay, write down an essay for me
और ए लेटर और एन आर्टिकल। मुझे कोई आर्टिकल लिख के दिखाओ, या मुझे कोई ऐसे लिख के दिखाओ, या मुझे कोई लेटर लिख के दिखाओ। सो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन, यू ऑल नो दिस थिंग, कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा गलतियां होंगी। अब मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एबीसी आती है, फिर आपने गलतियां क्यों की? इफ यू नो एबीसी, सी, इफ यू नो एबीसी, it means you know the language. Now when you know the language, तुम्हें फुल स्टॉप का मतलब भी पता था, तुम्हें कॉमा का मतलब भी पता था, तुम्हें सब कुछ पता था। जो चीजें उस लेटर को लिखने के लिए चाहिए वो चीजें तुम्हें पता थी, वो सब कुछ पता था तुम्हें, फिर तुमने गलती क्यों की? सो इट्स ए क्वेश्चन। एंड ये हमारे बहुत डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, और हमें बहुत चीजों का आंसर देगा। जो मैंने ऊपर अभी लास्ट स्लाइड्स में बोला था, लर्निंग ए लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड यूजिंग इज एंटायरली डिफरेंट। एक लैंग्वेज को लर्न करना और उसके बाद उस लैंग्वेज की इंप्लीमेंटेशन करना, मतलब उसको यूज करना, वो बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। Why am I saying this? कि लैंग्वेज आप कोई भी सीख लो, कोई भी, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लिखना क्या है तो आप क्या लिख पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, ये आर्टिकल की बात ही करें, सो आपको पंजाबी भी आती थी, आपको इंग्लिश, हिंदी, सारी लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन मैंने आपको एक बहुत टफ सा आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया, और आपने वो आर्टिकल में हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स की, कोई लिख भी नहीं पाया, अगर किसी ने लिखा तो वो भी गलत लिखा। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि तुम्हें उस आर्टिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सो लैंग्वेज आनी सब कुछ नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेक्चर, कि लैंग्वेज कोई भी तुम यूज कर सकते हो। तुम हिंदी यूज करो, इंग्लिश यूज करो, पंजाबी यूज करो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हें पता है क्या लिखना क्या है। दुनिया की सारी लैंग्वेजेस तुम्हें आती हो, लेकिन तुम्हें यही ना पता हो कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे लिखने के लिए बोला गया है, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें क्या आएगा, तो उस लैंग्वेजेस का कोई फायदा रहेगा? नो। सो सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में चलता है। तुम्हें सी भी आ गई, तुमने जावा भी सीख ली, तुमने सी प्लस प्लस के भी कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, रूल सीख लिए। सो जैसे हर लैंग्वेज के रूल होते हैं, इन लैंग्वेजेस के भी रूल होते हैं। सो तुमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सब सीख लिए, बोला कि अब मेरे को आती है, लेकिन वो तुमने सिर्फ लैंग्वेज सीखी है। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है तो तुम उसको इन सब में से कोई भी लैंग्वेज उठाकर सॉल्व कर दोगे। लेकिन तुम्हें अगर पता ही नहीं है कि जो प्रॉब्लम तुम्हें दी गई है वो सॉल्व कैसे होगी, तो अगर तुम्हें ये सारी लैंग्वेज जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं आपके सामने, अगर सारी की सारी भी आती हो, तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको कोई भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, वो लैंग्वेज से स्टार्ट नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड फर्स्ट, लैंग्वेज इज द लास्ट पार्ट। फिर एक छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूं तुम्हें मैं, कि मैंने आपको एक
मैथ की मैंने एक इक्वेशन दे दी आपको सॉल्व करने के लिए। सो मैंने बोला कि ये इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर लो और इसका प्रोग्राम बना के दिखाओ मुझे कंप्यूटर पे। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप सीधा कंप्यूटर पर बैठकर उसका प्रोग्राम बनाने लगोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो वो गलत होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती कैसे है, अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता, तो कोई लैंग्वेज क्या कर लेगी? लैंग्वेज तुम्हें फॉर्मूलाज थोड़ी बताएगी, वो तो तुमने खुद उसमें यूज करने। लैंग्वेज तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो लास्ट में यूज होता है। मैं सोचूं कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल गए तो अब मैं सिस्टम पे बैठ के प्रोग्राम बना दूंगा, वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई है कि प्रोग्राम्स बनेंगे कैसे। हाउ यू विल बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले वो दिमाग होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हो, और ये एक्सपीरियंस के साथ होता है। जितनी ज़्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर पाओगे। सो यू हैव टू एग्जैक्टली नो द सिचुएशन कि इस पर स्टक होने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज, हाउ टू यूज़ अ लैंग्वेज। नहीं, सबसे पहले यू हैव टू स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि लैंग्वेज, तुम्हें यह समझना चाहिए कि लैंग्वेज एक लास्ट टूल है जो सिर्फ यूज होता है लास्ट में। उससे पहला स्टेप देखिए क्या है। स्टेप 1 इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। if you do not know how to solve a quadratic equation, let's suppose here the problem is solving a quadratic equation. If you do not know how to solve a quadratic equation, and first of all, if you do not know that this is a quadratic equation, understanding the problem, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, तो तुम उसकी क्या इनपुट डिफाइन कर पाओगे, तुम्हें क्या आउटपुट चाहिए, क्या कितने नंबर तुम उसको इनपुट दोगे, क्या फॉर्मूला रहेगा उसका, you will not able to do anything. So before doing anything, this is the first step of understanding the problem, identifying the inputs and outputs कि है क्या। तो सीधा सिस्टम पर बैठने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपना कॉपी पेन लेके आराम से वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा स्टेप भी कॉपी पर ही चलता है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजाइन करो। तो अब मैं यहां पर आपको एक वर्ड यूज हो रहा है एल्गोरिथम, कल भी यूज हुआ था, तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन दे देता हूं कि एल्गोरिथम क्या होता है। जब तुम किसी गिवन प्रॉब्लम को कॉपी पर सिंपल इंग्लिश में लिखकर सॉल्व करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप तुम सॉल्व करते हो, तो उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आप मशीन पर, सिस्टम कंप्यूटर पर नहीं बैठे, आपने अपनी कॉपी पे बैठ के उसको सॉल्व किया कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी द सेकंड स्टेप, दिस विल बी द थर्ड स्टेप। अब जब तुम्हें पता चल गया कि ये इतने स्टेप्स में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने उसका एक एल्गोरिथम बनाया, मतलब उसके स्टेप्स बनाने शुरू कर दिए। दैट फर्स्ट स्टेप इज दिस, सेकंड स्टेप इज दिस। फर्स्ट पहले हम उसका बी स्क्वायर 4ac निकालेंगे, फिर इसको अंडरूट करेंगे, प्लस माइनस अंडरूट करेंगे। सो ये चीजें जब तुम उसको कॉपी पर पहले करके देखोगे, दैट विल बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम। अब जब ये कॉपी पर सॉल्व हो जाएगा, फिर लास्ट स्टेप है कि जो कॉपी पे सॉल्व हो गया है उसको तुम एक प्रोग्रामिंग टूल की हेल्प लो और उसका प्रोग्राम लिख दो। जो स्टेप्स तुमने एल्गोरिथम के लिखे हैं वही स्टेप्स तुम अपने प्रोग्राम में लिख दो। तो दिस इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड। Another example, this is a very, I'm telling you, it's a very systematic way कि सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम देखो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जाने से पहले, लैंग्वेज के पास जाने से पहले जो प्रॉब्लम है वो कॉपी पेन लेके सॉल्व की गई है। तो पहले प्रॉब्लम आई,
एल्गोरिथम्स बनाए, उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अपनी कॉपी पर लिखे, फिर उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिर उसका एक फ्लो चार्ट बना लिया। अब जब ये सब कुछ बन गया, तुम्हें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम थी, ये ऐसे सॉल्व होनी है। अब लास्ट पे जो तुमने स्टेप्स बना दिए हैं प्रॉब्लम सॉल्व होने के, उसको कोई भी प्रोग्रामिंग टूल यूज करके, तो बेसिकली यू नो व्हाट आई वांट टू से इज, सो ये यहाँ पर एक और जो हमारा एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप्स हैं वो हम एक बार दोबारा करेंगे। ये थोड़े से डिटेल्ड हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या। अब एक प्रॉब्लम के माय डियर एक सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर ऑल द सॉल्यूशंस। प्रोग्रामिंग में ना एक वर्ड यूज होता है LOC, LOC, लाइन ऑफ कोड। मैंने एक प्रॉब्लम दी तुम्हें 4 लोगों को, एक ने उसको 4 लाइन्स में सॉल्व कर दिया, दूसरे ने इसको 5 लाइन में सॉल्व किया, तीसरे ने सॉल्व करने के लिए 10 लाइनें ली, एक ने सॉल्व करने के लिए 15 लाइनें ली। तो प्रॉब्लम सेम थी लेकिन उसके अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करके अलग अलग वे से सॉल्व किया। तो बेस्ट वही रहेगा जिसने कम से कम लाइंस यूज की। सो फॉर दिस LOC बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो सबसे पहले जब तुम प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हो, तुम्हें उसके सॉल्यूशंस कितने निकल सकते हैं और बेस्ट कौन सा निकल सकता है, तुम्हें सबसे पहले वो डिजाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर इस फेज में कोई भी लैंग्वेज वगैरह तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास एक कॉपी है, एक पेन है और तुम्हारा दिमाग है, बस। उसके बाद उन सब सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन तुमने पिक किया या मल्टीपल सॉल्यूशंस पिक किए, उनको तुमने, ये 4th स्टेप है जो इम्प्लीमेंट किया। यहां पर आकर तुमने उसको, जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। 5th इज द रिव्यू ऑफ द रिजल्ट्स। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स हैपन। तो देखो प्रोग्रामिंग कहाँ आ रही है, लास्ट पॉइंट पे जाके आ रही है, उससे पहले तो अपना दिमाग लगेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज प्रोग्रामिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। Learning a language is just like learning other languages that you know. बहुत अच्छी लाइन यहां पे लिखी हुई है कि प्रोग्रामिंग इज लाइक एनी अदर स्पोर्ट। तुम्हें रूल्स पता होंगे पर उसे खेलना कैसे ये तुम्हें नहीं आता होगा। तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, तुम खेलोगे तभी तुम्हें याद होगा वो। तुम्हें इंग्लिश आती है लेकिन हर रोज अगर मैं तुम्हें एक ऐसे लिखने को दूंगा तब तुम्हारी इंग्लिश एफिशिएंट होगी, अदरवाइज तुम्हें A to Z सबको आता है। इसी तरह लैंग्वेज सीखनी एक अलग चीज है, उसका यूज करना अलग चीज है, और उसका यूज तब हो पाएगा जब तुम्हें खुद का लॉजिक बिल्ड करना आता होगा। लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी मेरी कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी एक दिन में तो बनती नहीं है, उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। सो इट इज नॉट मैजिकल। सी, आई टोल्ड यू द वेरी फर्स्ट डे, इट्स नॉट मैजिकल कि मशीन पर बैठे उसने काम कर दिया, अब मेरे हाथ में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, मैं सॉफ्टवेयर बना दूंगा। अरे कैसे बना दोगे, जितनी देर तक तुम्हें पता ही नहीं होगा बनाना क्या है। वो तो लास्ट स्टेप है। सो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है वो लास्ट स्टेप है। रियलिटी क्या है कि जब भी कंपनीज हायर करती हैं, आपने BCA की, MCA की फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप कंपनी में गए, तो जब भी कंपनी आपको हायर करती है जॉब के लिए, उनको प्रोग्रामर नहीं चाहिए होते। सी व्हाट इज रिटन हियर, यू नीड सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स। हमें वो लोग चाहिए जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड
ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आते हों, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो। हमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, इनको लैंग्वेज एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल है, लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल। इफ फॉर एग्जाम्पल के एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल और ले लेता हूं कि आपके पास एक कार है और उस कार के अंदर तुम्हारे पास एक टूल बॉक्स है। उस टूल बॉक्स में उस कार को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करने के सारे टूल्स हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि अब तुम्हारे पास टूल्स सारे हैं। तो अगर तुम्हारी कार खराब हो गई तो मैं ये मान के चलूं कि तुम उसको ठीक कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि कार को ठीक करना कैसे है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे पास टूल होना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यह पता होना इंपॉर्टेंट है कि यह काम होगा कैसे? सो ऑब्वियसली वो चीज इंपॉर्टेंट है जिससे पता हो कि यह काम कैसे होगा। फिर तो तुम जितने भी टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हो या कुछ और भी यूज कर सकते हो उन टूल्स के अलावा जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बट वी डू नॉट नो। सो माय डियर, गेट दिस पॉइंट। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग बैक। सी, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, बट learning a language is a different thing and using it is entirely different. तुमने एक लैंग्वेज लर्न कर ली, ये तुमने एबीसी लर्न कर ली थी, तुम्हें ऐसे लिखना नहीं आया क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि तुम्हारे लॉजिक स्ट्रांग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर लॉजिक्स। अगर लॉजिक अच्छा है तो कोई भी प्रॉब्लम सामने आ गई है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग ने सॉल्व कर ली है तो फिर वो कंप्यूटर पे बैठ के सॉल्व हो जाएगी। अगेन मैं बार बार कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं कि इट्स नॉट मैजिकल। मशीन मैजिक नहीं करती। तुम खुद प्रॉब्लम सॉल्व करके मशीन को उसका आंसर देते हो तो मशीन उसका आंसर दे देती है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू गेट इट फ्रॉम दिस वर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक लास्ट टूल है जो तुम्हें प्रोग्राम्स लिखने के काम आता है। ये फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं कि प्रोग्राम्स कि जी कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब मैं बोलूं कि तुम्हें ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी ना आए अगर, तो तुम प्रोग्राम क्या लिख लोगे? और ये तुम्हें लिखनी तब आएंगी ना अगर तुम्हें पता हो कि काम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी, एक प्रॉब्लम टू सॉल्व परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इफ यू डू नॉट नो द टास्क, हाउ कैन यू मेक ए प्रोग्राम? सो making a program is a secondary thing here. First of all, you must first know what is a specific task and how this task is going to solve. For another very good illustration for all of you, that for example you are going to the kitchen. आप अपने किचन में गए and वहाँ पे you are having everything with you. You are having all the materials. You are having all the things that are needed to make food, right? Be it sugar, be it your rice, whatever, anything that is needed. Gas is there, everything, cylinder is there, everything is there. But I ask you कि सब कुछ आपके सामने आ गया, सब कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को आई वॉन्ट टू हैव पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बना के दो, तो बना लोगे? यू विल सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि क्या मुझे पिज़्ज़ा बनाना आता है, बनाने के स्टेप्स क्या हैं। सामने सामान पड़ा होगा लेकिन आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको नहीं आता। तो वो जो सामान है वो टूल है, लेकिन उससे पहले उस टूल को यूज करके तुमने वो काम करना था, लेकिन तुम्हें वो काम ही नहीं आएगा तो टूल किस काम का? तो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, these languages these are these languages are tools. ये लैंग्वेजेस सिर्फ टूल्स का काम करती हैं. लास्ट पे सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी खुद आनी चाहिए. ये एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, एक रियलिटी है. और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू करते हैं वो फेल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि नोइंग प्रोग्रामिंग मीन्स सिस्टम पर बैठे किसी प्रोग्राम को लर्न करना शुरू किया, लैंग्वेज को लर्न करना शुरू किया तो तुम्हें प्रोग्रामिंग आ गई. नहीं, प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं आएगी. प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज के साथ नहीं आएगी. प्रोग्रामिंग जो है दिमाग के साथ आएगी. अगर तुम उसको किसी लैंग्वेज के साथ बाइंड करके करने की कोशिश करोगे तो यू विल फेल. अगर तुम ये सोच के काम शुरू करोगे कि मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सॉल्व तो मैं किसी भी टूल के साथ कर लूंगा, देन यू विल विन द टास्क. सो प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व्ड विद इन फर्स्ट स्टेप्स. Then after solving it on your copies in your brain, brainstorming solutions, after building a logic. और ये जो है लॉजिक बिल्डिंग है, ये मैं ये नहीं कह सकता कि आपको एक दिन में ही आपका इतना लॉजिक डेवलप हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई आई कोटेड दिस एग्जांपल हेयर कि जैसे आपको गेम एक स्पोर्ट है, वो आपको एक दिन में नहीं आती. आपको उस स्पोर्ट को लर्न करने के लिए आपको उसको प्ले करना ही पड़ेगा. तो इसी तरह लॉजिक इज ऑल्सो वन थिंग कि आपका लॉजिक एक दिन में नहीं बनता. आपको लॉजिक बनाने के लिए छोटे प्रॉब्लम से शुरू करके बड़े प्रॉब्लम्स पे धीरे 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 जाना पड़ेगा. सो देन योर लॉजिक विल ऑटोमेटिकली बी इनहांस्ड एंड वन डे यू विल बी अ वेरी गुड प्रोग्रामर. कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, आप उसके अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करोगे. सो देयर इज अ वेरी फेमस quotation about language, that language is just a tool for communication. Often the best conversations happen without words. I just took it from web, but it is very deep. A language एक सिर्फ टूल है. अपनी रियल वर्ल्ड सिनारियो में भी अगर आप देख लो, आपको सारे लैंग्वेजेस आते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए अगर आपके दिमाग में थॉट्स ही नहीं आएंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे. तो थॉट्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू आर हैविंग इन योर ब्रेन, दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट थिंग इज द लैंग्वेज. वंस थिंग्स कम इन टू योर ब्रेन, देन दे कम टू योर टंग. विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज देन दे कम आउट. कोई अदरवाइज भी हम जब भी कोई काम भी करते हैं तो सबसे पहले वो दिमाग में ही आता है, उसके बाद वो लैंग्वेज की फॉर्म में बाहर आता है. तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग दैट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन इज इंपॉर्टेंट. सो विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर, एंड टुमारो आई विल बी गिविंग यू few demonstrations of C language. कंपाइलर के मैं थोड़े से डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ के एक प्रोग्रामिंग हम जो है वो कैसे करते हैं, तो लॉजिक जो है वो कैसे डिज़ाइन होता है. सो दैट आई विल बी टेलिंग टुमारो. थैंक यू वेरी मच.